We have discussed so far electrophilic substitution reactions of aromatic compounds or arenes like benzene. The reactions include halogenation, alkylation, acylation, nitration, etc. In this lecture, we will discuss the mechanism of electrophilic substitution reaction. As per the experimental evidences, the mechanism of electrophilic substitution reaction involves three steps. Number one is generation of electrophile, that is electron deficient species or electron loving species, electron seeking species. The number second step is formation of carbocation, and the third one is removal of proton. During the reactions chlorination, alkylation, and acylation, during these reactions AlCl3 anhydrous AlCl3, it helps in the generation of the electrophile by combining with the attacking reagent. यानी जो ये AlCl3 है, अनहाइड्रस AlCl3, इन these reactions जो हम यूज करते हैं अनहाइड्रस AlCl3, which is a Lewis acid, electron deficient species, it helps in the generation of the electrophile like Cl plus, CH3 plus, CH3C double bond O plus by reacting or by combining with the attacking reagent. So this electrophile is known as asylum ion, the asylum ion. Let us take the example how this helps in the generation of the electrophile. This is ClCl. This is during chlorination. So it undergoes bond breakage. This bond gets cleaved. So we'll get AlCl3 है. This bond gets cleaved. That means ये cleave होगा, यहाँ पर होगा heterotic fission इसको. So we'll get Cl plus AlCl, ये 3 है, so it will become Cl4. इस पे रहेगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये यहाँ पर रहेगा नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पर शिफ्ट होगा. So this is Cl, ये इलेक्ट्रोफाइल है. So in case of chlorination, now in case of alkylation, CH3Cl plus AlCl3. So exactly ये bond break होगा like this. So we'll get CH3 plus AlCl4 minus. So this is electrophile in case of alkylation. Now we'll take CH3 C double bond O Cl plus AlCl3. ये वाला bond break होगा. This bond will break. So we'll get this is CH3 C double bond O. This is plus and this is AlCl3. AlCl4 positive negative. So this is electrophile in case of acylation. This is asylum ion. ये asylum ion है. So in case of nitration, अगर हम लेंगे नाइट्रेशन की बात हम करेंगे. नाइट्रेशन में जो नाइट्रोनियम आयन एज इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, this is due to transfer. This is produced. The nitrogen ion in case of nitration is produced by the transfer of proton from sulfuric acid to nitric acid. Like this. This is HSO3OH. मैं ऐसे लिखूंगा ये. This is sulfuric acid असली. ये H2SO4 है. ऐसे मैं लिख दे इसको. So this is HONO2. ये नाइट्रिक एसिड है. NO3 HNO3 नाइट्रिक एसिड है ये. So यहाँ पर ट्रांसफर होगा प्रोटॉन
फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड टू नाइट्रिक एसिड, इस पे 2 लोन फिर उस पर ऑक्सीजन पे, तो ऐसे जाएगा ये, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर ये प्रोटॉन को खाएगा, प्रोटॉन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये डोनेट करेगा ये ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को, सो ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगी इस ऑक्सीजन पे, सो विल गेट, हमें मिलेगा यहाँ पर HSO4 नेगेटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये प्रोटॉन यहाँ पर जो निकलेगा ये ट्रांसफर होगा, ये बनेगा HOHNO2, इस पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया। सो ये बन गया हमें यहाँ पर एक प्रोडक्ट। अब यहाँ पर होगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड पेयर शिफ्ट होगा यहाँ पर, ये ऑक्सीजन की जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूट्रलाइज हो जाएगा ये, सो विल गेट, हमें मिलेगा वाटर, ये H2O प्लस NO2, इस NO2 पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गई यहाँ पर, सो ये बन गया नाइट्रोनियम आयन है, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया जनरेट यहाँ पर इन केस ऑफ नाइट्रेशन। अब इन दिस केस, इन केस ऑफ नाइट्रेशन, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी जो ये प्रोसेस यहाँ पर जनरेट होती है इलेक्ट्रोफाइल, जो इस प्रोसेस के दौरान जिस प्रोसेस में ये NO2 यहाँ पर जनरेट होता है, यहाँ पर ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है इट एक्ट्स एज एन एसिड, ये एक्ट करता है एज एसिड, एंड दिस एक्ट्स एज ए बेस, ये एक्ट करता है एज बेस इस केस में, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन, in case of nitration the sulfuric acid acts as acid and nitric acid acts as base. So this was about generation of electrophile, the first step. The second step is formation of carbocation. Formation of carbocation is the second step. यहाँ पर जो अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का, जो अटैक है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स or arenium ion in which one of the carbon is sp3 hybridized. I say, I will take an example. This is aromatic compound, this is benzene. अब इसको इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, दिस इलेक्ट्रोफाइल ये अटैक उसको करेगा, अब ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये इसको अटैक करेगा, so we'll get this, we'll get a compound like this, इस पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ये H और E हो जाएगा इसका अटैच यहाँ पर, सो दिस कंपाउंड जो ये बन, दिस इज एक्चुअली एरीनियम आयन है, ये दिस इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसको हम पढ़ते हैं ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, और एरीनियम आयन, इसको एरीनियम आयन है। इसकी एक खास खूबी है, इसमें जो एक कार्बन होता है, बेंजीन में या एरोमेटिक कंपाउंड में सारे कार्बन होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसमें एक कार्बन जो ये बनता है ड्यू टू अटैक बाय द इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने से यहां पर एक कार्बन बनता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये वाला कार्बन यहां पर है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब दिस एरीनियम आयन जो है जिसमें एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दिस एरीनियम आयन गेट स्टेबलाइज्ड, दिस सिग्मा कॉम्प्लेक्स गेट स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस, ये रेजोनेंस से होता है स्टेबलाइज, कैसे, यहां पर एक और स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, ये जाएगा यहां पर, सो विल गेट H यहां पर, अब यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा डिलोकलाइज पॉजिटिव चार्ज, सो दिस H एंड E ऐसे बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा एक ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एक, अब दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, ये आएगा यहाँ पर, सो विल गेट वन मोर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर लाइक दिस इज H, दिस इज H E, अब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, अब ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, सो यहाँ पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज, अब एक और स्ट्रक्चर बनेगा लाइक दिस, ये यहाँ जाएगा, सो विल गेट, हमें मिलेगा, अब सॉरी यहाँ पर आएगा भी एक स्ट्रक्चर बनेगा भी, यहाँ पर आ गया ये, सो ये जाएगा, ये आएगा यहाँ पर, सो विल गेट वन मोर, ये ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पर था ये 5 चार्ज यहाँ, सो विल गेट
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। दिस H E, दिस H डबल बॉन्ड, या सॉरी यहाँ पर ऐसे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसे बनेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। सो इसका ये मतलब जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, दिस सिग्मा कॉम्प्लेक्स जब ये बनता है, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है एरीन को या बेंजीन को, सो वहां पर बनता है एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स। दैट सिग्मा कॉम्प्लेक्स गेट स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस से वो स्टेबलाइज हो जाता है। अब जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है और एरिनियम आयन जो है, जो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स या एरिनियम आयन है, इट लूजेस इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर, ये अपना एरोमेटिक कैरेक्टर लूज करता है। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड है, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है फिर ये कॉम्प्लेक्स होता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। दिस सिग्मा कॉम्प्लेक्स लूज इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर, ये अपना एरोमेटिक कैरेक्टर लूज करता है बिकॉज ऑफ डिलोकलाइजेशन ऑफ because the delocalization of electrons stops at sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इसीलिए एरोमेटिक कैरेक्टर अपना करता है लूज, क्योंकि जो डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट स्टॉप्स एट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इसका ये मतलब है जो एरीन होता है एरोमेटिक है, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है वहां पर बनता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स और एरिनियम आयन व्हिच इज नॉट एरोमेटिक, दैट लूज इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर because the delocalization of electron stops at sp3 hybridized carbon। अब ये लास्ट स्टेप है, दैट इज रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब जो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है इट लूजेस प्रोटॉन ऐसे। सो विल दिस टेक दिस सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स था, दिस सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब यहां पर था पॉजिटिव चार्ज, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। अब ये लूज करता है प्रोटॉन, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स लूज करता है प्रोटॉन टू रेस्टोर इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर, यानी प्रोटॉन इसलिए लूज करता ताकि ये अपना ये एरोमेटिक कैरेक्टर रेस्टोर करे। ये लूज करता है प्रोटॉन फ्रॉम द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, इसी कार्बन से लूज करता है या रिलीज करता है प्रोटॉन टू रेस्टोर एरोमेटिक कैरेक्टर ड्यू टू अटैक बाय AlCl3 AlCl4 negative in case of chlorination, alkylation and acylation। यानी इन केसेस में ये लूज करता है प्रोटॉन विद द हेल्प ऑफ दिस AlCl4 यानी ड्यू टू अटैक बाय दिस AlCl4। अब ये रिलीज क्यों करता है प्रोटॉन फ्रॉम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन टू रेस्टोर एरोमेटिक कैरेक्टर। सो विल गेट दिस लाइक दिस, ये यहां पर आए, ये इसको खाएगा इस प्रोटॉन को एज प्रोटॉन। सो ऐसे जाएगा ये, यहां पर ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, सो इट विल गेट रिलीज्ड एज प्रोटॉन, फिर ये ऐसे बनेगा, विल गेट दिस कंपाउंड, विल गेट E। यहाँ पर डबल बॉन्ड, ऑलरेडी यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, सो दिस इज सबस्टिट्यूट प्रोडक्ट। ये सबस्टिट्यूट प्रोडक्ट है, एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा ये। अब यहाँ पर एक और बनेगा AlCl3 बनेगा, और यहाँ पर एक Cl निकलेगा, वो बनेगा HCl। सो दिस इज, इस तरह ये करता है यहाँ पर। सो नाउ ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स था, इसने अपना एरोमेटिक कैरेक्टर लूज किया था। अब इसने लूज कर दिया प्रोटॉन फ्रॉम sp3 हाइब्रिड कार्बन, तो इसने अपना एरोमेटिक कैरेक्टर रिस्टोर कर दिया। इसी तरह इन केस ऑफ नाइट्रेशन, अगर हम नाइट्रेशन का केस लेंगे, नाइट्रेशन के केस में, ये नाइट्रेशन का केस है He, दिस इज H, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर ये लूज करता है प्रोटॉन इन प्रेजेंस ऑफ या ड्यू टू अटैक बाय HSO4 नेगेटिव, इससे इन केस ऑफ नाइट्रेशन में इसकी मदद से ये लूज करता है प्रोटॉन। सो लाइक दिस, सो विल गेट दिस कंपाउंड, सबस्टिट्यूट प्रोडक्ट हमें मिलेगा, प्लस यहां मिलेगा हमें H2SO4, ये H है और ये H हो गया H2SO4। सो इस तरह यहाँ पर रिमूव होता है प्रोटॉन
सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्यों करता है रिलीज प्रोटॉन? जस्ट टू रेस्टोर एरोमेटिक कैरेक्टर. So in short, we can say that the mechanism of electrophilic substitution involves three steps. The first step is generation of electrophile, the second is formation of carbocation, and the third is removal of proton from the sigma complex. Okay, thank you.